Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So I am giving you data of joining and non-joining of various banks wherever it is available. And after reading the comments, I feel some of you are confused about this data, and some of you are not able to understand the objective behind this data. Now say we have given data for a particular bank that this many people joined out of this much number of candidate. What is the meaning of this? Every year joining may happen to the range of 70%, 80% of the selected candidate. In none of the job 100% joining happens. Why? Because the candidates those are shortlisted for a particular post, sometimes they are having more than one offer in hand. So they will pick one job and they may not join the another job. So this depends upon the individual preference and individual liking. So non-joining of a particular organization does not mean that this job is good or bad. These are personal preference matters. Somebody may prefer banking job, somebody may prefer SSC job, somebody may prefer FCI job, somebody may prefer postal job, somebody may prefer railway job. So once a candidate is having more than one job offers in hand, so it always happens that some people will join and some people will not join a particular job. But the non-joining data is very important data for the people those are waiting. Say certain people are waiting in State Bank of India, junior associate. Certain people may be waiting for RRB, those are in reserve list. Certain people may be waiting for IBPS, those are in reserve list. So for them this data is very, very relevant. Sometimes this non-joining data also helps us to understand whether these vacancies will be available for next year. Say they don't get the adequate candidate from reserve list, then these posts may be carried over to next selection. And that's why data plays an important role. The non-joining does not mean that people are liking a particular organization or not liking an organization. This is a personal preference, because if I apply for many posts, I can only join one job. Okay, say person is selected in SBI PO, also selected in Central Bank of India. Somebody may like to join State Bank, somebody may like to join Central Bank. Or he is also selected for some other organization where he finds some other features. So he will go there. So these data are to be seen in a right perspective. The purpose of channel is to provide you information. From whatever source I am getting the information, employees are sharing some information, we place this on this channel. Purpose is so that you are able to analyze this data and decide your future. Because lot of candidates, those are on sidelines, especially those are in reserve list, they are always keen to know what is happening, how many joinings have happened, how many have not turned up, whether they will get the chance, whether their hopes are alive or not. That is the reason that data is posted. It is not showing the data that people are preferring this organization and non-preferring this organization. If somebody is interpreting this in such manner, it is a wrong interpretation in my eyes. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अभी आप देखेंगे कि ज्वाइनिंग्स चल रही हैं बैंकिंग में. स्टेट बैंक में जूनियर एसोसिएट की ज्वाइनिंग हुई, और बैंकों में भी कहीं क्लरिकल की ज्वाइनिंग हो रही है, कहीं पीओ की ज्वाइनिंग हो रही है, तो आरआरबी में भी ज्वाइनिंग हो रही है. तो जैसे जैसे ज्वाइनिंग नॉन ज्वाइनिंग की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम वीडियोस के सहारे उसको पोस्ट करते हैं. अब उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले कि कितने लोग ज्वाइन कर गए, कितने नहीं कर गए. यूजुअली कोई भी जो सिलेक्शन होती है उसमें 100% ज्वाइनिंग नहीं होती है, कोई भी पोस्ट हो. उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो कैंडिडेट है, जो उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, हो सकता है उस कैंडिडेट की एक से ज़्यादा जगह सिलेक्शन हुई हो. अब वो यहाँ से पिक करता है कि मुझे कौन सी जॉब ज्वाइन करनी है. किसी की प्रेफरेंस
बैंक हो सकती है, किसी की प्रेफरेंस एसएससी हो सकती है, किसी की प्रेफरेंस एफसीआई हो सकती है, किसी की प्रेफरेंस कोई और हो सकती है, रेलवे हो सकती है, पोस्टल हो सकती है। तो प्रेफरेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं तो जो भी जॉब उस दौरान निकलती है हम सारी जॉब अप्लाई करते जाते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि एक कैंडिडेट को तो एक भी जॉब नहीं मिल रही और किसी किसी कैंडिडेट को एक से अधिक जॉब में सफलता मिल जाती है। तो ज्वाइनिंग के समय सब लोग नहीं ज्वाइन कर सकते। डेटा बताने का मकसद ये होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो साइड लाइन पे बैठे हैं। साइड लाइन पे कौन बैठे हैं? जैसे अब एसबीआई में वेट लिस्ट आनी है, तो जो मार्जिनली रह गए हैं या कुछ नंबरों से रह गए हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें पता लगे हमारा स्टेट बैंक में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उनको उस डेटा की इंतजार रहती है। ऐसे ही आरआरबी में जो रिज़र्व लिस्ट में है या आईबीपीएस में जो रिज़र्व लिस्ट में है, उनको ये डेटा की इंतजार रहती है कि कितने लोग ज्वाइन कर गए, कितनी सीटें खाली रह गई, क्या ये सीटें हमें मिल जाएंगी या नहीं मिल जाएंगी। तो इसलिए ये जो डेटा होता है वो हम जिस भी सोर्स से पता लगता है आपके साथ शेयर करते हैं। इसका ये अर्थ नहीं होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोगों ने ज्वाइन किया है, लोग इसको लाइक करते हैं या नहीं। इंडिया में आज ये लग्जरी बहुत कम लोगों के पास है कि वो जॉब चूज़ कर सकें। यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को चूज़ करता है। जो लोग कैंडिडेट्स हैं वो अपने एम्प्लॉयर को चूज़ नहीं करते। वो बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनके पास मोर देन वन सिलेक्शन होती है, देन वो अपने अकॉर्डिंगली अपने एम्प्लॉयर को चूज़ कर पाते हैं। और वो भी ज़रूरी नहीं कि जो वो चाह रहे हैं वही मिल रहा है, क्योंकि इंडिया इज़ सफरिंग फ्रॉम अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी किसी की क्वालिफ़िकेशन होती है उसको अप्रोप्रिएट जॉब अभी नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए इस डेटा से ये इन्फ्लुएंसेस नहीं हम निकाल सकते हैं कि लोगों की प्रेफरेंस इस जॉब के लिए है या नहीं है। क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े तो मुझे लगा कि शायद कई लोग इसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पर्पज़ इस डेटा का यह है कि आपको बताना कि जो लोग वेट कर रहे हैं या जो नेक्स्ट ईयर की सिलेक्शन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए कितनी सीटें खाली होती जा रही हैं जो उनको मिल सकती हैं। या तो वो रिज़र्व लिस्ट वालों को मिल जाएंगी या वो सीटें जो इस साल की सिलेक्शन है वहाँ पर जुड़ जाएंगी। तो इसलिए ये आंकड़ा इसलिए रेलिवेंट है, प्रेफरेंस नॉन प्रेफरेंस के लिए नहीं है, इनकरेजमेंट डिस्करेजमेंट के लिए नहीं है। कई लोगों का मैंने पढ़ा कमेंट कि जी इससे डिस्करेजमेंट हो रही है, आप इस बैंक का डेटा दे रहे हैं। सभी बैंकों का दे रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक बैंक का डेटा नहीं दे रहे। जिस भी बैंक में ज्वाइनिंग होती जाएगी और जहाँ जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर बैंक के लिए वो डेटा नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे ज्वाइनिंग होगी तभी तो पता लगेगा कितने लोग ज्वाइन किए। तो इसको राइट पर्सपेक्टिव में लें। पर्पज़ है हमारा इंफॉर्मेशन देना, और उस इंफॉर्मेशन का यदि आपको यूज़ है तो आप उसको करिए, नहीं है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।